हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे जय राधा गोपीनाथ राधे जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल
हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय श्री हरिनाम संकीर्तन की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। So, welcome all of you to our Bhagavad Gita class. So, we are on the chapter number 3, that is Karma Yoga, and we have completed till verse number 27, right? I have given you the chapter breakup in the group. You can check the chapter breakup. Yeah, in the WhatsApp group. Life lessons. So, 3.1 to 2 is renunciation or work. That is Karma Yoga or Jnana Yoga. That is also a question asked by Arjun. And then from verse number 3 till verse number 9, we discussed how Nishkam Karma Yoga is a way for Arjuna. Right? Then from 10 to 16, Krishna described about Karma Kanda, that rain and that cycle, how rain comes. And that's how then Krishna concluded it with Karma Yoga. From Karma Kanda, he eventually went up to Karma Yoga from verse number 10 to 16. Then from 17 to 35, the section which we are studying right now, Krishna is describing how to perform Karma Yoga in this world. इस संसार में रहते हुए कर्म योग यानी कि भगवान का भक्ति भजन कैसे करना चाहिए, हमें कैसे हमें आदर्श उदाहरण रखना चाहिए सबके सामने अपना. That discussion is going on. And in the verse number 27, rather, yeah, I think we covered 28 also. 27. Okay, so 26 and 27 and 25, actually 3 verses, they describe the difference between attached person and a detached person. Yeah, attached person is karma kandi, detached person is karma yogi. The one who is not attached to the fruits of his work and the one who is attached. So उसके consciousness में क्या difference होता है? So that defining principle is given in the verse number 27. प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विगुणात्मा कर्तामिति मन्यते. The one who is detached, he doesn't think that he is the doer. That doesn't mean he is not going to sleep. I am not the doer. Krishna is the only doer. See, while performing his action, he is thinking, I am the doer. But for results, he is dependent on the Lord and is convinced that result will be given by Krishna only. I can only just work. So in that sense, he is not the doer, detached. Right? So that's how 27 verse was described. 27 वर्स बड़ा फेमस श्लोक है, प्रभुपाद के कई लेक्चर्स में आप सुनेंगे आप. Because everything actually in this world is carried out by 3 modes of material nature. एक राजसिक आदमी राजसिक क्रियाएं करता है, बिल्डिंग बन रही, these are all passionate acts.
A sattvic person, he may write some poetry, write some literatures, he is a philosopher, scientist. These are all sattvic activities. The one who is in ignorance is running brothels, meat shops, is having intoxications, right? So all these three modes, they actually carry out your work. अभी आप तमोगुण में चले जाएंगे तो सो जाएंगे, मतलब आप कुछ नहीं कर रहे, तमोगुण आपको एक्चुअली एक्टिवेट कर रहा है सोने के लिए. इफ यू आर इन पैशन, यू विल कीप लुकिंग फॉर वॉच, लुकिंग एट द वॉच ऑल द टाइम, कब खत्म होगा कब खत्म होगा क्लास. दिस इज पैशन. एंड वन हु इज इन गुडनेस, वो शांति से बैठ के पढ़ाई करेगा. सो जिस प्रकृति के गुण में हम लोग अपने आप को स्थित करते हैं, उसके हिसाब से हमारा जो भी हमको कार्य उद्दिष्ट करना है संपन्न होगा. सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट कौन सा प्रकृति का गुण हमारे अंदर एक्टिवेट कर रहा है, और उस मोड में अपने आप को सिचुएट करना ताकि हम जो क्रिया करना चाहते हैं वो अच्छी तरह से हो. सपोज यू आर अ बिजनेसमैन, you can't be in mode of ignorance, right? You have to be in the mode of goodness and passion. So similarly, when you have to perform the spiritual activity, you have to be in the mode of goodness. Then you can chant. अब goodness में रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? बैकग्राउंड होना चाहिए पहला. कैसा बैकग्राउंड? एटलीस्ट हफ्ते में एक बार अगर सत्संग में अटेंड करें, हफ्ते भर वो एनर्जी चलता रहता है. The reserve stock of goodness will help you throughout the week. नहीं तो चैंटिंग कैसे स्टार्ट हो सकता है? चैंटिंग कैनॉट हैपन बिकॉज देयर हैज टू बी सम प्रायर बैकग्राउंड विच मोटिवेट्स यू, इंस्पायर्स यू टू डू योर स्पिरिचुअल एक्टिविटी. तो प्रभुपाद ने इसलिए इंटेलिजेंटली क्या किया है, ही हैज डिजाइन्ड द प्रोग्राम इन सच अ वे दैट एटलीस्ट वंस अ वीक वी मीट टुगेदर. तो टेम्पल में संडे फीस्ट होता है, बहुत सारे सत्संग कार्यक्रम वीकली बेसिस पे होते हैं, राइट? So that's how. So these three modes, they actually carry out all the work. Then in the 28th verse, then he further describes, your description चालू है अभी भी, कर्मकांडी versus कर्मयोगी. तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुण गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते. Yeah, read the translation. Who is in knowledge of the absolute truth, O mighty arm, does not engage himself in the senses and sense gratification, knowing well the differences between work in delusion and work for fruitive results. Yes. The one who has knowledge of the absolute truth, right? जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया है, वो व्यक्ति जानता है कि अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए जो कार्य किया जाता है उससे क्या फल उत्पन्न होगा, और भगवान को संतुष्ट करने के लिए जो हम कार्य करते हैं उससे क्या फल उत्पन्न होगा. सो एवरी वर्क इन दिस वर्ल्ड विल गिव सम रिएक्शन, इजंट इट? व्हाटएवर यू डू, व्हाटएवर यू थिंक will produce some reaction, but if you do everything for the pleasure of the Lord, that will not produce any reaction. इसीलिए हम भक्ति क्या करती है, हमको मुक्त करती है संसार से, क्योंकि रिएक्शन ही पैदा नहीं होगा उससे. पढ़ा था कि नहीं, कर्म अकर्म विकर्म, राइट? सो कर्मा इज रेगुलर कर्मा that will produce some reaction, but akarma is what? Bhakti. So apparently there is karma, but there is no action being performed. Why? Because whatever you are doing for the pleasure of the Lord or by the direction of the scriptures. So you will not produce any reaction out of that. समझे कि नहीं? This is the art of work. उसको कहते हैं योगी. So yogi is not one who is in the Himalaya, बड़ा बड़ा जटा है, और उसको योगी नहीं बोलते. योगी मतलब one who understands the intricacies of karma. कौन सा काम करने से क्या उत्पन्न होने वाला है, राइट? और मुझे क्या इस जगत में बांध के रख देगा. सो दैट्स व्हाई व्हाटएवर वी डू वी ट्राई टू कनेक्ट दैट विद द लॉर्ड. तो सब कुछ, सारी क्रियाएं क्या हो जाएंगी? आध्यात्मिक बन जाती हैं. तो उससे कुछ सीन तो बहुत दूर रह गया, लेकिन इवन मटेरियल रिएक्शन भी उससे मिलेगा नहीं, राइट? सो जैसे हम लोग अगर कुछ खाते हैं तो उसको प्रसाद बना के खाइए, भगवान को भोग लगा के. तो वो जो फूड है उसमें जो भी कर्मा रहता है, जिसने वो स्टोर हाउस में स्टोर किया है, दुकान वाला, उसमें से उसने जो प्रॉफिट अर्न किया,
and he earned the profit with your help. So when he does something wrong, Hare Krishna, you are also part of that. Because you helped him to get that money, and with that money he did something wrong. तो कर्मा ऐसे बना के रखा है सिस्टम, आप कहीं बच नहीं सकते. आप बोलेंगे ठीक है, फिर प्रसाद तो मैं अच्छा लूंगा, लेकिन मैं बाकी टाइम कुछ सुनूंगा भी ना, घर में बैठ के कुछ बोलूंगा भी. तो कुछ सुनोगे तो कीर्तन सुनो, कथा सुनो भगवान का. बोलोगे तो भगवान के बारे में बोलो. So you need to say, but if we offer the food to the Lord, so whatever karma is done, the food is all. Yes, it's purified. Now, ordinary food is in the three modes of material nature, either सात्विक, राजसिक, तामसिक. इस संसार में कोई भी चीज प्रकृति के तीन गुण के जुरिडिक्शन में आती है, उसके बाहर नहीं है वो. Anything you take, but when you offer that to the Lord, it becomes transcendental. It is purified of the three modes of material nature. तो उसमें कोई सात्विक, राजसिक, तामसिक गुण नहीं रहता, उसमें आध्यात्मिक गुण आ जाता है. राइट? अब कुछ भी संसार में लो ना, कुछ भी आप करो, हर कोई चीज इन तीन गुणों से कंटामिनेटेड है. उसको दूर, उसको शुद्ध करने के लिए तो हम भगवान से उसको ऑफर करवाते हैं ना. Otherwise, you take simple example of a food that is you are getting from your grocery shop. दिया ना मैंने एग्जाम्पल. आप दुकान से खरीद रहे हैं, दुकान वाले कैसे उसको लेके आया है, क्या कर्मों से उसने उसको बनाया है, उससे जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है उसके क्या डिजायर्स हैं. दे ऑल कंट्रीब्यूट, यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू ऑल दैट. इसलिए लोग कभी कभी बोलते हैं कि दुनिया में अभी वॉर हो रहा है, ये सब हो रहा है, हमने तो कुछ किया नहीं भाई, तो वॉर वहां पे हो रहा है कि हमको परेशानी होती है. You are also part of this ecosystem. When the war is happening why? Because of so much greed, anger, lust. बराबर है? तो आपको क्या लगता है कि आपके अंदर lust, greed, anger नहीं है? Are you not contributing to the world's lust, greed, anger in any form or way? Are you not contributing? You are part of this society. उन्होंने जो चीजें बनाई आप उसको यूज कर रहे हैं ना आज. You are using the internet, you are using the gadgets, you are using the vehicles, you are using everything जो उन्होंने बनाया है, और उससे ही वो पैसा कमा रहे हैं ना. You are also contributing, so you will also have to suffer. As simple as, you can't escape. तो कोई बोलेगा मैं तो इधर बैठा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं शांति से रहना चाहता हूं. बट आप उसका सिस्टम का पार्ट है ना. You are actively contributing towards what's happening in the world. You may not realize, but if you see in proper Bhagavad Gita perspective, you will see that you are active participant in the war. बराबर है कि नहीं? फिर इससे आपको सॉरी, इसमें से आप बाहर ही नहीं आ सकते. नहीं आ सकते जब तक. इसलिए प्रभुपाद ने कहा ना, द ओनली सॉल्यूशन फॉर द वर्ल्ड इज गॉड कॉन्शियसनेस. सो अमेरिकन दे से वी ट्रस्ट इन गॉड. उनके नोट पे किधर तो लिखा रहता है, या वो उनके इसमें है जो भी रहेगा नेशनल, जैसे हम यहाँ वंदे मातरम बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, उनका वो लिखा हुआ है स्टेटमेंट, वी ट्रस्ट इन द गॉड. सो यू ट्रस्ट इन द गॉड, बट डू यू फॉलो गॉड? सबसे पहला कमांडमेंट क्या था जीसस का? दाउ शैल नॉट किल. इफ अमेरिका इज ए क्रिश्चियन कंट्री एंड इफ दे से दाउ शैल नॉट किल, सबसे ज्यादा मीट ईटिंग इन द वेस्टर्न कंट्रीज, सबसे ज्यादा लिकर कंजप्शन, सबसे ज्यादा प्रोस्टिट्यूशन, सबसे ज्यादा गैम्बलिंग, कसिनो हाउस, सब कहां से आए? एंड वी ट्रस्ट इन द गॉड, वी बिलीव इन द गॉड. Thou shalt not kill, that the first commandment of Jesus. और सबसे पहले मारने के लिए वही लोग हैं. ये सब स्लॉटर हाउस का कॉन्सेप्ट कहां से आया? इंडिया में तो नहीं था. बीफ इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट एक्सपोर्टेड आइटम इवन नाउ फ्रॉम इंडिया ऑल्सो. तो हम लोग है, सॉरी, तो हम लोग है कि नहीं? आर वी नॉट पार्ट ऑफ दैट इकोसिस्टम? सो अभी वो जियो पॉलिटिकल सब छोड़ दो, वो सब अभी क्या है ना कि आप ऐसे जगह में फंसे हुए कि यहाँ से आपको कुछ ना कुछ मांडोली करते रहना पड़ता है कि थोड़ा ये सेटिंग. फिर गवर्नमेंट जो कर रही है उसके हिसाब से. वी कांट ब्लेम द गवर्नमेंट, द ब्लेम इज ऑन अस.
Hare Krishna. So that's why when you see this verse, you will see that three modes of material nature, they have completely covered everything. And we are also part of that. And whenever something happens, we are also bound to get reaction for that also. कोई कहीं पे मर जाता है, आप बोलते हैं हमको क्या लेना है, वो मर गया तो मर गया, बट किसकी वजह से मरा? आपकी वजह से मरा। क्यों? इफ यू सी इन रिमोट वे, रिमोटली थोड़ा देखेंगे आप तो इसका कनेक्शन आपसे मिलेगा। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि अनलेस द एंटायर वर्ल्ड बिकम्स गॉड कॉन्शियस देयर इज नो वे आउट। जब तक भगवान ने जो दिए हुए, चाहे वो बाइबल में हो, क्रिश्चियनिटी में हो, या फिर इवन कुरान में ऑल्सो, इन कुरान ऑल्सो देयर आर प्रिंसिपल्स गिवन, बट अभी क्या है, कुछ लोग उसमें से कुछ चीज निकाल के उसको मिस रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर कैसे? आप अगर देखेंगे इस्लाम में वो जो सूफीज रहते हैं ना, सूफीज प्योर वेजिटेरियंस, मालूम है कि ना आपको? पक्का साधु संत रहते हैं वो लोग। स्मॉल पोर्शन ऑफ दैट अमंग देम। सो उसमें भी है। कौन सा धर्म ऐसा बोलता है कि आप किसी की हत्या करो और साथ में बोलो कि भाईचारा होना चाहिए दुनिया भर में? यू आर किलिंग ऑल द इनोसेंट एनिमल्स एंड एट द सेम टाइम यू से दैट दुनिया के जितने भी लोग हैं सब भाईचारे से रहने चाहिए। कितना बढ़िया डेफिनेशन है नहीं? एक साइड में आप काटो, दूसरे साइड में बोलो कि भाईचारा होना चाहिए, तो वो भाई नहीं है कि आपका जिसको काट रहे हैं? हरे कृष्ण। इसलिए तो बोलते हैं ना। So that's why when Krishna is explaining here that you try to understand that you are not the doer of activities. आप नहीं है, करने वाला कौन है? प्रकृति के तीन गुण है, और प्रकृति के तीन गुण किसके अधीन है? भगवान के अधीन है। इनडायरेक्टली कृष्णा इज द वन हु इज एक्टिवेटिंग एवरीथिंग, बट बिकॉज ऑफ फॉल्स ईगो यू आर थिंकिंग आई एम द डूअर, राइट? जस्ट लाइक इफ यू go to Mayapur by plane, you can reach in 2 hours, right? 3 hours, 4 hours, कलकत्ता उतर के वहां से 2 घंटा जर्नी गाड़ी पकड़ के। If somebody goes by train, he will take 36 hours, 32 hours. So now if someone who has already gone through plane, वो बोलेगा देखा पहले पहुंच गया मैं। तो इसमें क्रेडिट किसका है? आपका है कि प्लेन का है? क्रेडिट किसका है? जो बेचारा ट्रेन से आ रहा है वो बोलेगा सॉरी मैं स्लो हूं। इसमें तुमको दुखी होने की क्या बात है? तुम्हारा गाड़ी स्लो है, तो गाड़ी तुम्हारा नहीं है, तुमको जो भगवान ने गाड़ी दिया वो स्लो है, और उसको जो भगवान ने दिया वो फास्ट है। अब इसमें दोष ना उसका है ना उसका है, अपने अपने कर्मों के हिसाब से अपने को जो मिला उससे तुम गया है। इसमें दुखी होने की बात नहीं है, ज्यादा सुखी होने की भी बात नहीं है। अगर आप जल्दी पहुंच गए, लेट अस बी ग्रेटफुल टू द गॉड, बिकॉज गॉड हैज प्रोवाइडेड मी विद दिस फैसिलिटी, आई कुड रीच फास्ट। समझे कि नहीं? बट जो प्लेन से जाता है वो सोचता है दैट्स हाउ इट ट्रैप्स द। सिमिलरली यू टेक एनी एग्जांपल, आप बिजनेस में अच्छा कर रहे हैं, आई एम सच आई हैव सच ग्रेट मार्केटिंग स्किल्स, और समबडी इज परचेस वाला किधर गया है? हाँ, परचेस करने गए। क्या नेगोशिएटिंग स्किल्स है मेरा, जानते हो? एंड आई अंडरस्टैंड ऑल द प्रोडक्ट्स, उसका रॉ मटेरियल सब पता चलता है मुझे। सो दैट फॉल्स ईगो कैन कम एट एनी टाइम। हम लोग कथा करते तो हमको लगता है वाह क्या कथा कर दिया, नहीं क्या कीर्तन किया, क्या प्रेजेंटेशन है, वाह। कुछ नहीं है यहाँ पे हमारा। भगवान अंदर से प्रेरणा देते हैं, बुद्धि देते हैं, कर लेते हैं हम लोग। और आप ये समझ के चलो तो फिर कभी कर्म के बंधन हमको लगेंगे नहीं। जो भगवान दे रहे हैं, कृपावश दे रहे हैं, तो वेलकम है। भगवान की सेवा में इस्तेमाल करेंगे, धर्म के हिसाब से रहेंगे, राइट? सो दैट्स हाउ ही इज सेइंग कि आपका व्हीकल तगड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप तगड़े हैं। द व्हीकल इज पावरफुल, यू आर नॉट पावरफुल। Similarly, this body is a vehicle. Somebody may have good intelligence, good skills. The vehicle is powerful. You are not powerful. You are a simple, tiny, small living entity. 1/10,000 part of the tip of the hair. और इसका आपको कब समझ में मिले, आपको इसको कब समझ में आएगा? जब आप कभी बीमार हो जाते हैं। हरे कृष्णा।
सो वो बहुत बड़ा ऑरेटर, बिजनेसमैन, कथाकार, कीर्तनकार, पायलट, बॉक्सिंग चैंपियन, क्रिकेटर, कहाँ चला जाता है वो सब? सो व्हेन कृष्णा हम्बल्स यू, हरे कृष्णा. इसलिए देखो ना, स्पेशली दोज हु आर very popular, very famous, very powerful, when they become old, हरे कृष्णा, हालत खराब हो जाता है उनका, मिजरेबल हो जाते हैं. Why? Because they have been living a life of so much sense gratification, so much doership, that when it's taken away by the force of time, by Krishna, then we have nothing to take shelter of. क्योंकि आज तक उसी चीज का शेल्टर लिया है. नाम का तो शेल्टर लिया नहीं, भागवत का शेल्टर लिया नहीं, गीता का शेल्टर लिया नहीं. अब जब ये चीजें चली जाएंगी तो किसका शेल्टर लेगा? फिर गुस्सा होता है, चिल्लाता है, दुखी होता है. राइट? सो दैट्स हाउ कृष्णा इज एक्सप्लेनिंग हियर. कभी कभी कुछ डिवोटीज आपको दिखेंगे, दे आर सो एक्सपर्ट, बात बात में श्लोक बोल देंगे थर 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 से. और आपको अगर बोला जाए एक श्लोक मेमोराइज करो, हरे कृष्ण, 50 अटेम्प्ट में भी एक श्लोक मेमोराइज नहीं होगा. तो डोंट बी डिसअपॉइंटेड. जिसको आता है वो भी डिसअपॉइंट ना हो, सॉरी ज्यादा ओवर एक्साइटेड ना हो. आपको नहीं आता है, डोंट गो इनटू इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. जस्ट बी पीसफुल एंड बी हैप्पी. जितना आता है. वी विल ऑफर टू द गॉड. नहीं आता है, नहीं आता है. दैट डजंट मीन वी डोंट चैंट 16 राउंड्स. जितना आता है उतना ही करेंगे. 16 राउंड इज मैंडेटरी. बट आई एम सी, कुछ ऐसे ड्यूटी होते हैं जो एक जगह बैठते हैं, ऐसे एक बार बैठते हैं ना तो 16 माला करके उठते हैं वहां से. तो उसको देख के दुखी मत हो जाओ, अरे बाप रे, मेरा तो 16 माला 24 पूरा 14 भुवन घूम के होता है, पूरा ब्रह्मांड. When I start chanting, I move around the 14 worlds, upper, middle, lower planetary system पूरा घूम के आता हूँ in my 16 rounds. That's okay. You are chanting, chant. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So that's how. So this is the summary till verse number 18. So 26 में आपने देखा था, don't disturb the minds of the people, engage them accordingly. Right? 27 में देखा था, how the ignorant acts in this world and he is bound. 28 में देखा था हमने अभी, how the enlightened are not bound. ठीक है? This is a kind of summary so far. 26 में देखा था हमने, don't disturb the minds of the people, just engage them accordingly. उनका जो भी गुण रहेगा उसके हिसाब से उनको इंस्ट्रक्शन दो और काम कराते रहो. 27 में देखा, how the ignorant is bound, कर्मकांडी. 28 में देखा हमने, how the enlightened are not bound. यहाँ पे अभी हम देखेंगे. And in the 29, that is the last verse in this section, I think. Yeah, मतलब इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर सेक्शन, he will tell how the enlightened engages the ignorant. तो अभी आप enlightened है, लेकिन there are so many people who are ignorant. How to engage them? वो भी फॉर्मूला दिया यहाँ पे कैसे एंगेज करना है. राइट? Yeah, but we'll read some purport, some few points from 28th verse. In the middle, if you go, I think this is the 6th or 7th line. In his pure state of existence, he is meant to dovetail his activities in devotional service to the Supreme Personality of Godhead Krishna. He therefore engages himself in the activities of Krishna consciousness and becomes naturally attracted to the activities of the naturally unattached to the activities of the material senses, which are all circumstantial and temporary. He knows that his material condition of life is under the supreme control of the Lord. Consequently, he is not disturbed by all kinds of material reactions, which he considers to be the mercy of the Lord. Right? जो भी मिला भगवान की कृपा, दुख मिला तो भी कृपा, सुख मिला तो भी कृपा, कुछ नहीं मिला, ना दुख ना सुख, न्यूट्रल है, लाइक नीलेश प्रभु, तो भी सुख. क्योंकि एवरीथिंग इज मर्सी ऑफ द लॉर्ड. एवरीथिंग इज मर्सी ऑफ द लॉर्ड. Even in distressful condition, if you are undergoing some stress, distress, anxiety, that is also a mercy of the Lord. But it requires a consciousness to recognize that. उस consciousness को develop करना पड़ता है.
अदरवाइज दुख भी आपको बांध सकता है संसार से, क्योंकि आप गुस्सा हो जाएंगे फिर। सुख तो आपको ऐसे ही बांध रहा है बिकॉज यू आर टू मच हैप्पी, देन यू बिकम अटैच्ड विद दैट ऑब्जेक्ट। तो दो चीजें होती है, इधर यू उसको क्या बोलते हैं, ना आति निर्विण्णो ना आति सक्तो। इन द 11th कैंटो ऑफ द भागवतम इन उद्धव गीता, कृष्णा सेज टू उद्धव, टू मच अटैचमेंट इज ऑल्सो प्रॉब्लम, टू मच डिटैचमेंट इज ऑल्सो प्रॉब्लम। डिटैचमेंट कब होता है? गुस्सा आता है तब। बट एक्चुअली देखो डिटैचमेंट नहीं है, दिस इज नेगेटिव, अनदर साइड ऑफ अटैचमेंट ओनली, अनदर साइड ऑफ अटैचमेंट। बट गुस्सा आता है तो फिर बोलते हैं कि गुस्से में छोड़ दिया उसने, छोड़ा नहीं है, फ्रस्ट्रेट होके छोड़ा है, मतलब अभी तक अटैचमेंट गया नहीं है, द नेगेटिव साइड। So we say at every stage, just remain samanya, calm. Every point of Who time, devotee, and how we can remain calm? just chanting. Yeah, chanting means what? Chanting means he's chanting means he's Not just chanting the Lord's name, you're also applying it also not to your consciousness. yeah, but this will happen by chanting. So yeah, okay, but you have to, because when you're chanting also sometimes the mind goes Yeah. everywhere. But then chanting will eventually develop your consciousness, and the indicator of your being cool and calm is that even if in so much distressful condition or so much happiness, you continue chanting Hare Krishna. This is the indication that कुछ भी हो जाए, But not necessarily one person's calm is the other person's calm. see I am talking about chanting. संसार में कुछ भी हो जाए फिर भी अगर आपका नाम जब नहीं छोड़ेंगे, इसका मतलब क्या है कि आपको भगवान के ऊपर विश्वास है कि भगवान कर रहे सब कुछ। नहीं तो क्या होता है, अगर समझो कुछ ज्यादा ही ऐसा कुछ हो गया, एकदम सिचुएशन एकदम स्ट्रेसफुल, आप सोचते हैं कि यार भगवान क्या कर रहे हैं मेरे लिए, मैं खुद अकेले हैंडल कर, मैं करता हूँ ना अभी। ये ज्यादा अगर आनंद मिलेगा जीवन में, वो तभी भी सोचता है चैंटिंग नहीं करूँ क्या फर्क पड़ेगा, लेट मी एंजॉय। So the indicator, chanting is one thing among so many aspects of devotional service. It could be reading भगवद गीता डेली, आपने जो भी बना के रखोगा अपना साधना का शेड्यूल। बट हमारे लिए अभी इस समय सबसे एक्सेसिबल भगवान का नाम है, इजीली एक्सेसिबल। शास्त्र पढ़ेंगे कितना समझ में आएंगे मालूम नहीं, मंदिर में 24 घंटा सेवा नहीं कर सकते, हिमालय में जाके बैठ के तपस्या नहीं कर सकते, घर में बड़े बड़े डिटीज ला के सेवा नहीं कर सकते। तो हमारे लिए भी सबसे एक्सेसिबल क्या है? भगवान नाम एंड कीर्तन। बट नाम में ज्यादा क्यों बोल रहा हूं? व्हाई आई एम नॉट सेइंग अबाउट कीर्तन? बोथ आर फॉर्म्स ऑफ द लॉर्ड, नेम्स ऑफ द लॉर्ड ओनली, बट कीर्तन इज समथिंग which you may experience to be more joyful because there is a musical instrument being involved, there is a particular melody. That's not wrong, कीर्तन तो मुझे भी अच्छा लगता है। बट अगर आपको टेस्ट करना होगा कि आपका कीर्तन में कितना टेस्ट है, तो चैंटिंग करके देखिए कि आपको चैंटिंग में टेस्ट आ रहा है कि, बिकॉज चैंटिंग कैसे होता है ना, देर इज नो काइनेटिक एनर्जी, हरे कृष्णा, देर आर नो इंस्ट्रूमेंट्स बीइंग प्लेड, देर आर नो मेलोडीज, देर इज ओनली वन मेलोडी, एंड दैट इज द मेलोडी ऑफ व्हाट यू नो। सो दैट इज द टाइम ऑफ टेस्टिंग कि मेरा एडवांसमेंट कितना हुआ है। अगर हुआ है सचमुच, जितना कीर्तन में आनंद आता है उतना आनंद तो चैंटिंग में भी आना चाहिए ना। जितना आनंद सेवा में आता है, मटर छिलने में, सब्जी काटने में, बिकॉज सी व्हेन द बॉडी इज एंगेज्ड एज पर योर डिजायर, इट वेरी इजी टू टोटल इट, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं होता माइंड से। बट चैंटिंग करते समय रेजिस्टेंस क्यों होता है? बिकॉज दैट इज समथिंग माई माइंड डजंट लाइक। वो बोलता है ये सब कुछ करो, ये थोड़ा आराम से करो, क्योंकि इसमें क्या लगता है ना, इसमें आपको सरेंडर लगता है, डेडिकेशन लगता है, यू हैव टू हियर द नेम, यू हैव टू चैंट इट, क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा। अभी कीर्तन करते करते घर के काम हो सकते हैं, चैंटिंग करते करते नहीं हो सकते। कीर्तन करते करते आप 2-4 गिफ्ट के पैकेट बना लो, डिजाइन बना लो, ठीक है नहीं तो बता रही। सो चैंटिंग रिक्वायर्स सरेंडर। चैंटिंग इसलिए 24 घंटे में से प्रभुपाद ने 2 घंटे क्यों दिए? चेक करो ना 2 घंटा आप कितना सरेंडर बढ़ गया है। उस समय आप अगर सरेंडर नहीं हो, समझ जाओगे अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, चल रहा है। वैसे भी वर्क इन प्रोग्रेस स्टिल एंड रहेगा, बट जितना हुआ है उतना हम चेक कर सकते हैं।
इसलिए प्रॉब्लम यहाँ पे कह रहे हैं कि जब आप भगवान के ऊपर विश्वास रखेंगे कि भगवान ही मुझे सब कुछ दे रहे हैं, भगवान ही मेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, प्रैक्टिकली कैसे ट्रांसलेट होता है ये? When it comes to my sadhana, I am not neglectful. When it comes to my chanting, I am not thinking, अरे I am the doer in my business. 24 घंटा बिजनेस में लगे रहो. हाँ, I believe in Krishna. बट एक्शन में क्या दिखा रहे हैं? आई एम द डूअर. बोलने के लिए बोलता है मैं भगवान को विश्वास रखता हूँ, भगवान ही सब कुछ है, हाँ भगवान ही करा रहे हैं. Fresh. लेकिन जब भगवान का नाम लेने का समय आता है, नो 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 नो, दैट आई कैन नॉट डू. दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स स्टिल आई हैव द डूअरशिप मेंटेलिटी, राइट? हरे कृष्णा, ही इज नॉट द डूअर. सोच रहे कृष्णा इज द डूअर, राइट? So that's what Prabhupada says here in the purport. He's not disturbed by anything, right? Consequently, he is not disturbed by all kinds of material reactions, which he considers to be the mercy of the Lord. According to Srimad Bhagavatam, one who knows the absolute truth in three different features, namely Brahman, Paramatma, and Supreme Personality of Godhead, is called Tattvavit. For he knows also his own factual position in relationship with the Supreme. So इतना आसान नहीं होता है एक्चुअली सरेंडर करना. And that surrender will be tested especially during the time of chanting. भयंकर टेस्टिंग होगा. कितना भी बड़ा आप देखो ना, इसलिए आप कितने भी बड़े ओरेटर हो, कितने भी बड़े कीर्तनकार हो, कितने भी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हो, आप कितने बड़े बिजनेसमैन हो, डोनर हो, आप चैंटिंग करने बैठो, आपका टेस्टिंग हो जाएगा. मेरा मन कितना लगता है चैंटिंग में, इससे डिफाइन होता है कि आप कितना भगवान के प्रति आकर्षित हो गए हैं, राइट? दैट्स ऑल. यस नीलेश, ट्रू. इज इट ट्रू और फॉल्स? एब्सोल्युटली ट्रू. हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं ना डे इन डे आउट. लेक्चर देना है, एक्साइट हो जाता है. कीर्तन करना है, एक्साइटमेंट. प्रसाद, एक्साइटमेंट. यात्रा और एक्साइटमेंट. चैंटिंग करना है, करते हैं, तो काउंटर की तरफ देखते रहते हैं. 8 माला बाकी है, लेट अस डू इट. बट देन एज यू गो ऑन, एज यू डेवलप द टेस्ट, एज यू गेट प्यूरिफाइड बाय डूइंग ऑल दिस सर्विसेज, अल्टीमेटली ये जितना भी हम कर रहे हैं ना, किसके लिए कर रहे हैं? नाम में हमारा विश्वास बढ़े और नाम में रुचि उत्पन्न हो. और जैसे जैसे नाम में रुचि उत्पन्न होगी, विश्वास बढ़ेगा, you will enjoy the chanting more. Not enjoy, we are not supposed to enjoy the chanting, but we are supposed to give Krishna enjoyment by chanting. जब प्यूरिफिकेशन होगा ना, then you will actually become real servant. then आपको मन में इतनी इच्छा होगी सेवा करना चाहिए, ये डिवोटी की सेवा करना चाहिए, ये भक्तों की सेवा करना चाहिए, धाम में जाके सेवा करना चाहिए, मंदिर में जाके सेवा करना चाहिए, सब्जी काटना चाहिए. हरे कृष्णा. Those desires will start sprouting in your heart. इच्छा सेवा करने की तब तक नहीं उत्पन्न होगी सेल्फलेसली, जब तक शुद्धिकरण नहीं होगा. और शुद्धिकरण तभी होगा जब भगवान का नाम जाप करेंगे. और कोई मार्ग नहीं है इस युग में, राइट? सो ऑल द स्टडीज दैट वी आर डूइंग, ऑल द एंडेवर्स फॉर डिफरेंट यात्रास एंड सो मेनी फेस्टिवल्स इज ओनली जस्ट टू हेल्प यू गेट इंस्पायर्ड टू चैंट. और कोई उद्देश्य नहीं है. Hare Krishna. So that's how it describes here. Then in the verse number 29, now Krishna will tell how the enlightened person should engage one who is not enlightened, one who is ignorant. तो आपका पड़ोसी है, हरे कृष्णा है क्या? Yeah, anybody, whoever there. So that's how Krishna will tell in the verse number 30. Yeah, 30 or sorry, 29. प्रकृते गुण सम्मूढ़ सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् कृष्ण संविदो मंदान् कृष्ण विन विचाल्येत. या रीड द ट्रांसलेशन. माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं. यदि भी उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अहम होते हैं, कारण अहम अदम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करें. या कहने का उद्देश्य क्या है? विचलित ना करें. आप ज्ञानी हैं बट वो ज्ञानी नहीं है. आप कुछ बोलेंगे तो विचलित होने वाला है वो.
आप बोलेंगे चैंटिंग करो, विचलित होगा। आप बोलेंगे सेवा करो, विचलित होगा। आप बोलेंगे मंदिर आओ, विचलित होगा। आप बोलेंगे भागवत पढ़ो, विचलित होगा। हर चीज के लिए विचलित होगा, जो भी आप स्पिरिचुअल उसको बोलेंगे। सो राइट नाउ हियर व्हाट कृष्णा सेज, या 29, एक तो पहले डेफिनेशन दिया है, bewildered by the modes of material nature, the ignorant fully engages themselves in the material activities, right? प्रकृति के 3 गुण उसको इतना परेशान कर देते हैं बेचारा। सुबह एकदम तमोगुण में रहता है, क्योंकि 8 बजे तक 9 बजे तक सोता है, पूरी रात तो तमोगुण में है। थोड़ा दिन बढ़ता है तो पैशन उसको ओवरटेक करता है, देन स्टार्ट्स मूविंग अराउंड, ये चाहिए वो चाहिए, संसार का चीज, दैट इज द राजसिक, राइट। फिर शाम होते होते तमोगुण पकड़ लेता है। बेसिकली most of the population in the modern civilization, they're trapped by ignorance and passion. Goodness बहुत ही कम या होता ही नहीं है। पैशन इग्नोरेंस, पैशन इग्नोरेंस, दिन भर सुबह जो घर से निकलता है तो पैशन ओवरटेक कर लेता है, रात को घर में जाता है इग्नोरेंस, सो जाता है, राइट। ऐसा व्यक्ति जो कंप्लीटली बिविल्डर्ड है प्रकृति के 3 गुणों की वजह से, स्पेशली गुडनेस एंड सॉरी passion and ignorance, such person, Prabhupada is Krishna is saying here, he becomes bewildered. Bewildered मतलब समझता क्या होता है उसका अर्थ? हो जाता, भ्रमित, क्या करूं क्या नहीं करूं समझ में नहीं आता। आप बोलेंगे ऐसा थोड़ी है, सब लोग तो अच्छे से काम कर रहे हैं ऑफिस में, सिस्टमेटिकली सब कुछ उनका ऑर्गेनाइज है, सब कुछ ऑफिस ऑर्गेनाइज है, घर ऑर्गेनाइज है। ऐसा नहीं है। उसके हार्ट में जाओ, externally everything is organized, but internally within his heart and mind is totally disorganized, totally disoriented. पूछ जाके उसको, बाजू वाले को पूछो। एग्जाम्पल, क्लासिक एग्जाम्पल अगर आप देखना है, बाहर से सब कुछ दिखेगा एकदम परफेक्ट है यार, क्या चकाचक ऑफिस है, एवरीथिंग इज पिक एंड पाइन नेट क्लीन एकदम, और आदमी जो बैठा है सूट टाई कोट पहन के, पानी का ग्लास बॉटल लाइट पंखा सब कुछ ऐसे, क्या एकदम। These people are so much in the mode of goodness, नहीं देख के लगता है गुडनेस तो बाहर से है, अंदर देखो मन में इतनी जबरदस्त इच्छाएं हैं, ये चाहिए वो चाहिए, ये पूरा नहीं हुआ ड्रीम, ये पूरा ड्रीम फुलफिल करना है, इसने मुझे धोखा दिया, मैं उसको देखूंगा, आई विल टेक द रिवेंज, आई विल डू दिस दैट। इंटरनली ही इज कंप्लीटली इन, ऐसा वर्लपूल मालूम है ना आपको, वर्लपूल देखा नहीं है आप लोगों ने? You can see that in the countryside. जब river, up, especially during the rainy season, when the river waters get flooded, you can see ऐसा गोल 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 घूमता है वो, और उसमें जो गया ना, गया अंदर वर्लपूल। या फिर हवा का भी बनता है, यहाँ नहीं दिखेगा आपको, थोड़ा yes, knowledge, कंट्री साइड में जाएंगे तो दिखेगा आपको, कहीं भी, चाहे इधर उधर कहीं भी ऐसा। उसमें जो भी रहता है ना, वो ऐसे प्लास्टिक का पेपर का टुकड़ा, वो उसमें जब फंसता है ना, उसको उठा के कहाँ फेंक देते हैं मालूम ही नहीं पड़ता है। सो सिमिलरली हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो क्या है अभी उसमें एकदम फंस गया पूरी तरह से। सो कृष्णा कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को अभी आपको इंस्ट्रक्शन है, क्या इंस्ट्रक्शन देंगे आप उसको? So he is saying, but the wise should not unsettle them, Hare Krishna. Unsettle means what? Although these duties are inferior due to the performance lack of knowledge. तो अभी इसका सिंपल ट्रांसलेशन क्या है? Don't disturb ignorance means don't give them instruction which is too much for them to practice. Hare Krishna. अभी उसको आप बोलेंगे तुरंत 16 राउंड करो, करेगा क्या वो? This is a very heavy instruction for him, but not for you, those who have been coming for last 2 years. Hare Krishna. But if you still think that this is very heavy, that's okay, because still we are not ready for that. But जो ready हो गए कर रहे हैं, right? So अच्छा, आज कृष्ण को यहाँ बैठने के लिए बोला है क्या? नहीं, मुझे लगा पनिशमेंट। ओके 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 अच्छा है ना, कुछ तो काम में ओके, लेट हिम स्टडी, इग्नोरेंटली कुछ तो काम में पड़ता लेट हिम स्टडी, ओके। बट सो इंस्ट्रक्शन ऐसा मत दीजिए जो बहुत हेवी रहेगा उसको पालन करने के लिए, राइट? They are at particular level, encourage them to practice at that level so that gradually they come up, right? जैसे कोई अगर गणेश पूजक है
तो बोलता है कि मैं गणेश की पूजा करता हूँ, आई डोंट वांट टू चैंट हरे कृष्ण. सो व्हाट शुड यू डू एट दैट टाइम? Let him do Ganesh Puja. यस एग्जैक्टली. Why not? यस, वही तो बोल रहा हूँ ना मैं. वो कर रहे हैं. वही तो, या दिस इज द सेम कृष्ण इज टेलिंग. उसको फोर्स मत करो, क्योंकि लेकिन उसको बताओ कि गणेश पूजा करने से क्या आपको मिलना चाहिए. थोड़ा थोड़ा प्रवेश करने का, धीरे 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 एंट्री करने का उसके जीवन में. एकदम मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं डायरेक्टली ले लेते हैं, कृष्ण का जाप करना है, आई विल चैंट फ्रॉम टुमारो. कुछ लोग बोलेंगे, किसी को कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं हम ओम नमः शिवाय जपते हैं. हम बोलते हैं करो, ओम नमः शिवाय जपो, लेकिन वो जपने से या देवता की पूजा करने से आपको क्या मांगना चाहिए वो जरा डिफाइन करो अपने आप में. डू यू वांट समथिंग विच विल पुट यू अंडर स्ट्रेस, और यू वांट समथिंग विच विल गिव यू एवरलास्टिंग पीस? क्या चाहिए आपको? क्योंकि उसको तो मालूम नहीं क्या चाहिए एक्चुअली. ही जस्ट थिंकिंग कि मुझे कुछ चाहिए तो मुझे मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा. आप समझ रहे हैं ना? तो अभी अल्दो भगवान ऐसे कह रहे हैं कि उसको डिस्टर्ब मत करो, उसको जो करना है करने दो. एटलीस्ट कुछ तो कर रहा है ना, देवताओं का नाम ले रहा है, दुर्गा का नाम ले रहा है, लेने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं. माता के चौकी इधर है. यतीन, वेर इज यतीन? अच्छा, सो करने दो, डोंट डिस्टर्ब. बट देन इफ यू सी इन द purport what Prabhupada will say, where is that 29, right? Yeah. हाँ, सेकंड पैराग्राफ में जाइए. In the second paragraph, Prabhupada says, men who are ignorant cannot appreciate activities in Krishna consciousness, and therefore Lord Krishna advises us not to disturb them and simply waste valuable time. क्योंकि सुनेगा नहीं वो, आप बोलेंगे सुनेगा ही नहीं, डिबेट होगा, आर्गुमेंट होगा, और इसमें क्या होगा, वो तो कभी हारेगा नहीं और आप कभी जीतेंगे नहीं. वो कंटिन्यूस चलते रहेगा. तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, बट द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड आर मोर काइंड देन द लॉर्ड. हरे कृष्णा. बिकॉज दे अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ द लॉर्ड. सो इवन तो कृष्णा इज टेलिंग डोंट डिस्टर्ब, जाने दो बेचारा. बट भक्त क्या सोचता है, नहीं मैं क्या करूंगा, उसको मदद करूंगा. बट अभी यहाँ पे क्लैरिफिकेशन ये है, बी कंपैशनेट बट केयरफुली. केयरफुली. ज्यादा भी कंपैशन दोगे उसको हेवी, तो ब्रेक हो जाएगा बेचारा. सी इसलिए कहते हैं कि वी हैव टू ब्रेक पीपल्स मिसकॉन्सेप्शंस, नॉट पीपल. लोग कभी कभी लोगों को तोड़ देते हैं, इतना हेवी इंस्ट्रक्शन बोलेंगे. एक जैसे एक दिन था लॉन्ग बैक, हमारा कौन था वो, हाँ एक हॉस्टल में किधर तो प्रोग्राम होता था. तो उसमें हॉस्टल प्रोग्राम में आते थे अच्छे अच्छे लोग आते, यूथ्स आते थे. उसमें एक यूथ था, ही वॉज अ साई बाबा वर्शिपर. तो हमारा एक प्रीचर था, उसको इतना हेवी डोज दे दिया, साई बाबा प्रीचर, साई बाबा तुम साई बाबा को वो क्या भगवान है क्या, ये है क्या, वो है क्या, इतना हेवी उसको दे दिया. हरे कृष्ण. he didn't come in the next program and he never come. अब एक्चुअली क्या हुआ ना, उसका बाद में जब चेक किया लोगों ने, आफ्टर 10, 15, 20 years, they found that he has become a sannyasi in some other मठ. तो ये मायावादी मठ है, आई विल नॉट टेक द नेम. उधर जाके क्या बन गया, वो सन्यासी बन गया बहुत बड़ा. दैट इज अ मायावादी संप्रदाय. जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट हैंडलिंग प्रॉपरली फॉर सम छोटा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा समय होता है एक एक्चुअली. एक जब आदमी पहला इंप्रेशन लेता है कि इधर तो कुछ लोग ही ऐसे खतरनाक लोग हैं यार, तो वो देखता नहीं कि क्या देना चाहते हैं. सो ऑल्दो वी आर गिविंग द हाईएस्ट, हम लोगों को अच्छा देना चाहते हैं, बट वो देना कैसे चाहिए उसका आपको तरीका होना चाहिए. टू गिव इन सच अ वे दैट ही इज एबल टू टेक इट. हरे कृष्णा. तो इसलिए मैं आपको कभी बोला क्या, कुछ बोला मैंने? एनीबडी हु इज वॉट एवर डूइंग, आप जिसका वर्शिप करते रहो. बट हमें ये समझना है कि शास्त्र से सिस्टमेटिकली एक दिन हमको ये समझना है कि फिलोसॉफिकली देखेंगे तो कौन कहाँ पे सिचुएटेड है. आप जिसकी पूजा करना चाहते कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट देन यू हैव टू सी अल्टीमेटली व्हाट इज द रियलिटी एंड ट्रूथ. एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है.
हम क्यों उसके ऊपर इतना आपको डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, ताकि आप कल ऐसा ना हो जाए कि जीवन के अंत में आप बोले सब कुछ किया, भक्ति भजन पूजा पाठ, लेकिन अभी आगे क्या होगा मेरा। अरे जिसका किया वो कौन था, क्या था, आपने पहले पता किया क्या? इसलिए समझ लो कि क्या कर रहे हैं आप, किसको टाइम दे रहे हैं। ऐसे जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दिया जिसका बाद में पता चला रिटर्न तो कुछ ही नहीं है। होता है ना ऐसा। आजकल तो इतना है, लोग अपना टाइम देते हैं किसी को, सोचते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद मालूम पड़ता है फ्रॉड। तो फिर क्यों दिया था टाइम? नहीं, हमें लगा ऐसा अच्छा होगा वहां पे। अरे आपके लगने से क्या होता है? आपके लगने से कुछ नहीं होता है। उसको पता ही नहीं है ना कि तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, पता करो ना। फिर कैसे पता करोगे आप? scriptures. ना आप बोलेंगे ऐसा कैसे, तो आप कुछ भी, हर चीज के लिए स्क्रिप्चर बोलते हैं आप। समझो मुझे अगर दुकान में जाके पता करना है कि ये चावल का ब्रांड अच्छा है कि नहीं, तो भगवत गीता बताएगी मुझे। आप ऐसा ऑब्जेक्शन देंगे ना मुझे? इंटेलिजेंस देगी पता करने के लिए। नहीं, यू विल से इफ द वाटर इज नॉट कमिंग प्रॉपरली इन माय बीएमसी का जो कनेक्शन यहाँ पे आपका जो भी बिल्डिंग का रहेगा, तो मुझे भगवत गीता बताएगी। समझदारी चाहिए चेक करके। आप बोलेंगे मुझे समझदारी है ना, स्कूल कॉलेज में ऐसे थोड़ी पढ़ाई किया है मैंने। या कोई कोई सी, इसलिए कहा जाता है कि एब्सर्ड इंक्वायरीज व्हिच हैव नो कनेक्शन, कनेक्शन है बट देन आप अभी समझ नहीं पाएंगे उसका कनेक्शन। आप बोलेंगे कि आज अगर समझो रोटी बनाना है, तो मुझे भगवत गीता थोड़ी पता है कि रोटी कैसे बनता है, वो तो मीना बताएगी। Yes, Nilesh, true. Then how you will answer this question? Checkmate हो गया इधर ही। This you will inquire, no? She knows how to cook food, so we have the intelligence of if we want to cook food, we will from a judgment ask her how to cook. You will teach us to cook, then we can cook food. See, when we study scriptures, we study scriptures in terms of the overall goal of life, purpose of life. See, हम लोग का तकलीफ क्या मालूम है जीवन में? पर्पस नहीं है। The one who is without purpose will eventually get frustrated. जिसका जीवन में पर्पस ही नहीं है। आप बोलेंगे पर्पस क्यों नहीं? हमारा है ना पर्पस, कमाओ, पैसा बनाओ, अच्छा एजुकेशन लो और फिर एंजॉय करो। पर्पस है ना ये। इज दिस पर्पस? दिस इज नॉट पर्पस। दिस इज सिंपली ट्राइंग टू लिव एट द बॉडीली इंस्टिंक्ट ऑफ ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग। ये पर्पस नहीं है लाइफ का। तो अभी पर्पस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, यही आपको नहीं समझ में आए तो क्या डिफाइन करेंगे आप? इसलिए जिसको बेसिक एलिमेंटल नॉलेज नहीं है शास्त्र का, फिलोसॉफी का, उसको नहीं समझा सकते आप कितना भी उससे डिबेट करो कभी नहीं समझेगा वो। इसलिए बैकग्राउंड होना चाहिए किसी भी चीज का। अभी आपका बैकग्राउंड हो गया है, मैं कुछ बोलता हूँ तो आप बोलते हैं हाँ। पहले पहले नहीं बोलते थे, पहले पहले चैलेंज करते थे। ऐसे कैसे? अभी चैलेंज नहीं करते ज्यादा, अभी करते हैं, लेकिन अभी आपको मालूम पड़ गया कि इसके पीछे कुछ फिलोसॉफी है, इसलिए ऐसा कहा जाता है। सो दैट्स व्हाई बी कंपैशनेट बट केयरफुली, राइट? आराम से। जैसे एक क्लासिक उदाहरण दिया है। एक जन, वन बॉय आस्क्ड वन प्रीचर, हु सेड दैट लॉर्ड चैतन्य इज गॉड? किसने बोला भगवान चैतन्य महाप्रभु भगवान है? तो उस प्रीचर ने आंसर दिया, एंड एक्चुअली इट इज रिटन इन द गरुड़ पुराण। In the Garuda Purana is explained, one who sees difference between Gaurachandra and Krishna Chandra, that means Lord Krishna and Lord Chaitanya, he will go to Krumi Park hell for 10,000 years. Do you know that? Could be part of it. 10,000 साल के लिए चलाएगा। Anybody who sees difference between Lord Chaitanya and Lord Krishna, because both are God. If you see difference, कौन बोला भगवान है? उसके लिए पनिशमेंट है, गरुड़ पुराण में दिया है। He will go to क्रूमी पाक। क्रूमी पाक मतलब जानते क्या होता है? I've seen या देर ऐसा बड़ा टैंक रहता है, उसमें ऑल यूरिन एंड स्टूल एंड सो मेनी वर्म्स, यू विल हैव टू बी देयर इनसाइड दैट फॉर 10,000 years. हरे कृष्णा। दिस इज द पनिशमेंट।
सो नाउ अभी क्या होता है? सो दिस इज देयर, बट कोई नए आदमी को नहीं बोल सकते ना आप ये सब चीज। वो सुनेगा तो बोलेगा कल से बाप रे, लोग डेंजर लोग हैं, कल से आना बंद यहाँ पे। सो इंस्ट्रक्शन, गाइडलाइंस और शास्त्र की जानकारी आराम से धीरे धीरे दीजिए। But we became from knowledge that Vishnu has 10 incarnations. There are 10 incarnations of Vishnu, in which Chaitanya Mahaprabhu is not there. नॉट देयर। अरे प्रभु, आपको मैं रेफरेंसेस दूंगा, ऐसे 20-25 रेफरेंसेस आएंगे, विष्णु सहस्त्र नाम से लेकर, महाभारत से लेकर, भागवत से लेकर, एवरीवेयर देयर इज अ proof that Lord Chaitanya is the incarnation of Krishna. बट होना चाहिए ना थोड़ा सा, शास्त्र के जो कोटेशन है उसको डिकोड करने के लिए जानकारी होनी चाहिए ना, समझे कि नहीं? I'm still not clear. सी, आपको अगर गीता का श्लोक देखेंगे आपको समझ में आता है क्या क्या है उसमें, बट जितने भी आचार्य होके गए अभी तक, चाहे वो रामानुचार्य हो, मध्वाचार्य हो, इवन शंकराचार्य, एवरीवन हैज एक्सेप्टेड लॉर्ड चैतन्य एज द इनकारनेशन ऑफ कृष्ण। तो अभी उनकी बुद्धि, आपकी बुद्धि उनकी बुद्धि से तेज है क्या? What I mean to say, the entire cosmos, the knowledge that is given, there are 10 incarnations of Lord. And just not just 10, Prabhu. There are numerable incarnations. If you go to the first canto of Bhagavatam, 3rd chapter, there are 24 incarnations described, not just 10. हमने 10 सुने क्योंकि हमने 10 ही सुने आज तक, क्योंकि हमने अभी तक शास्त्र की तरफ पढ़े हैं, We have not gone to the Bhagavatam. not just Bhagavatam. We have not read the vast variety of literatures. हमने रामायण नहीं पढ़ा है, महाभारत नहीं पढ़ा है, भागवत नहीं पढ़ा है, हमने गीता भी नहीं पूरी पढ़ी है। वैसे भगवान चैतन्य का इस्कॉन के अलावा कोई प्रचार नहीं है, उनका मतलब जिक्र नहीं है। हाँ, क्यों नहीं है उसका कारण है, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ इस्कॉन के बाहर कहीं नहीं है करके है। आप जाइए ना, इफ यू गो टू द श्री संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय, ऑल द संप्रदाय जो 4 बोनाफाइड संप्रदाय हैं सब एक्सेप्ट करते हैं। अभी देखिए ये जो हमारा संप्रदाय पर्टिकुलर, उसको कहते हैं ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय। इसके फाउंडर कौन है? ब्रह्मा जी। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम लॉर्ड ब्रह्मा। लॉर्ड ब्रह्मा ने कई स्तुतियां गाई है भगवान चैतन्य के इसमें, और आप जगह वहां पे जाएंगे, कहाँ पे? नवद्वीप। नवद्वीप में तो एक जगह है सीमंत द्वीप करके, वहां पे पार्वती का मंदिर है, वेयर लॉर्ड कृष्णा ब्लेस्ड पार्वती, एंड पार्वती इज देयर हु इज वर्शिपिंग लॉर्ड चैतन्य एज कृष्णा। इनन्यूमरेबल्स। लेकिन हमने देखा किधर है, घूमे किधर है, और पढ़ा कहाँ है? और इस्कॉन में ज्यादा प्रोपोगेशन क्यों चैतन्य महाप्रभु का? बिकॉज चैतन्य महाप्रभु एस्टेब्लिश इस्कॉन, ही इज द वन हु एस्टेब्लिश इस्कॉन, He propagated the महामंत्र चैंटिंग, देन लेटर इट वाज टेकन अप बाय। अभी आप जो करंट वृंदावन देखते हैं ना, आज का वृंदावन, हु डेवलप्ड दैट वृंदावन? Chaitanya Mahaprabhu is the one who discovered Radha Kund Shyam Kund, because he is the one who did perform those leelas. कृष्ण के अवतार में जब आए तो वो लीला किसने किया? राधा कुंड, श्याम कुंड जो भी है, महाप्रभु ने 15th सेंचुरी ढूंढ के निकाला। उनके जो प्रोमिनेंट डिसाइपल्स हैं, षड गोस्वामी बोलते हैं, 6 गोस्वामी जो वृंदावन के, जो 7 मेन मंदिर है ना वृंदावन के, सब ठाकुर के जो बोलते हैं, these are 6 main disciples of Mahaprabhu. They established Vrindavan. Later on, when Prabhupada came, he went to the west, he brought his disciples, further popularized the Vrindavan. Hare Krishna. But अभी क्या होता है? Now people know only 2-3 temples. एक अपना कौन सा मंदिर है वो आउटस्कर्ट पे वृंदावन के, एंट्री करते ही क्या नाम है, भूल गया मैं उसका। हाँ, प्रेम मंदिर। दे नो प्रेम मंदिर एंड बाकी बिहारी, दैट्स इट। बट ओरिजिनल वृंदावन के जो 7 देवालय हैं जो गोस्वामियों ने बनाए और वृंदावन को पॉपुलराइज किया, वेरी फ्यू पीपल नो। व्हाई? बिकॉज लोग कैसे होते हैं ना कि जो इजीली, मतलब जहां पे उनको ऐसा चाहिए भक्ति की जहां पे रूल रेगुलेशन ज्यादा ना हो। हम जाए मंदिर में, हमको कोई छिड़खानी ना करे, कोई बोले नहीं, हमको कोई डोनेशन ना मांगे, वो तो अलग बात है, शुड नॉट बी आस्क्ड फोर्सफुली।
बट हमको ऐसे भी नहीं चाहिए कि जो हमको बोले चैंटिंग करो, ये करो, तुम भक्ति करो, हमको ऐसा नहीं चाहिए। हम मंदिर जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, निकल जाएंगे वहां से। पीपल वांट दैट टाइप ऑफ भक्ति। सो वो लोग कहाँ जाते हैं फिर? ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे कोई उनको पूछेगा नहीं, तुम भक्ति करना चाहते हो, जीवन में समझना चाहते हो भगवान क्या है? नहीं, हमको लाइट देखना है खाली। मंदिर का रंग रंगोली देखेंगे, लाइट देखेंगे, डायरों में देखेंगे, निकल जाएंगे पेड़ा लेकर। सो दैट टाइप ऑफ स्पिरिचुअलिटी हैज स्पॉइल्ड पीपल्स कॉन्शियसनेस। इट्स स्टिल गुड, नॉट बैड, कुछ तो है, चलो आ रहे हैं वृंदावन देख रहे हैं, बट इफ यू सी द हिस्ट्री, इट स्टार्ट्स फ्रॉम चैतन्य महाप्रभु एंड देन इट गोज डाउन टिल प्रभुपाद। हरे कृष्णा। बहुत कुछ बताने के लिए। तो लोग बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु कौन है? मतलब जिन्होंने पूरे विश्व को, आज जितना स्पिरिचुअलिटी का इतना सब कुछ फैल रहा है, प्रॉस्पर हो रहा है, इट्स बिगन फ्रॉम चैतन्य महाप्रभु इन द 15th सेंचुरी। उसके पहले ऑफ कोर्स देन रामानुचार्य इज देयर, मध्वाचार्य इज देयर, एंड ऑल दिस आचार्यस। अभी सोचो ना, शंकराचार्य इज वन हु इज कंसिडर्ड the greatest acharya in India, right? He himself acknowledges and admits regarding Chaitanya Mahaprabhu. मध्वाचार्य, रामानुचार्य, बड़े बड़े आचार्य साउथ इंडिया के। तो अभी हमारी बुद्धि उनसे तेज है तो फिर क्या करें? If our intelligence is more, if we think that my intelligence is more than their intelligence, in ordinary routine life also, if some scientist has developed some device, we happily accept कि हाँ आपने बनाया है, आप जैसे बोलेंगे इसको ऐसे ऑपरेट करेंगे। करते क्या नहीं विश्वास? क्या बोलते हैं? नहीं, मेरा दिमाग तुमसे ज्यादा है, मैं दिखाता हूँ कैसे करने का। इस उस्तादी नहीं करते ना। तो ये उस्तादी स्पिरिचुअल लाइफ में आने के बाद क्यों होती है फिर? बिकॉज देयर इज अ फॉल्स ईगो, देयर इज नो प्यूरिफिकेशन। इट रिक्वायर्स प्यूरिफिकेशन टू एक्सेप्ट स्पिरिचुअल लाइफ। देन यू विल एडमिट एंड अंडरस्टैंड, अरे भाई मैं कौन हूँ? मेरे को तो ठीक से मेरी इंद्रिय भी मेरे वश में नहीं है। My senses are not under my control, and I'm trying to judge the acharyas. I'm trying to judge those who have given the spirituality to the whole world. मैं उनको जज करने की कोशिश कर रहा हूँ, right? So that's all. तो इसलिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दीजिए, बट थोड़ा आराम से, शांति से। That's how Krishna is telling in the verse number 29, right? So that's why devotees are more compassionate because they understand the purpose of the Lord. राइट मुझे अगर मालूम है कि भगवान का उद्देश्य है अल्टीमेटली आपको नाम जप देना है, तो मैं उसी डायरेक्शन में काम करूंगा। भले कभी भी भगवान बोलेंगे थोड़ा आराम से करो, समटाइम आई विल ट्राई टू फास्ट फॉरवर्ड, बटन थोड़ा ज्यादा ट्रिगर जो है ना वो जल्द थोड़ा हेवीली प्रेस कर दूंगा। भाई बिकॉज मुझे मालूम है कि, और मुझे मालूम होना चाहिए कि कब खींचना है और कब छोड़ देना है। वो सब एक्सपर्टीज डिवोटीज को मिल जाता है बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड। भगवान बराबर उसको बुद्धि देते हैं कब ज्यादा एकदम हेवी ट्रीटमेंट देना है, कब लाइट छोड़ना है, राइट? एंड दैट्स हाउ डिवोटीज आर वेरी डियर टू द लॉर्ड। क्योंकि भगवान तो खुद आगे नहीं कर पाएंगे। आप भगवान को तो मानते ही नहीं, तो भगवान की क्या सुनेंगे हम लोग? लेकिन कोई महात्मा आएगा, डिवोटी आएगा, तो आप उनकी सुनेंगे, बोलेंगे यार यार कम से कम ठीक है, वो कुछ बोल रहे, सुनते थोड़ा सा। So Krishna is therefore dependent on his devotees, even though he is Swarat, independent, supreme Lord, but still he is dependent on his devotees. Why? And the other reason is Krishna wants to give credit to his devotees. Not that he cannot do, he can do, but still he thinks that मेरे डिवोटी को क्रेडिट मिलना चाहिए। Just like अर्जुन, पूरा वार तो कृष्ण ने ही पूरा जिता के दिया, लेकिन फिर भी बोले ना अर्जुन यू आर द वन। बट अर्जुन को समझ में आता है भगवान हमें ऐसे बेवकूफ मत बनाओ, आप ही ने किया है सब कुछ, आप अननेसेसरली मेरा फॉल्स ईगो पैम्पर मत करो, आपने ही किया है सब कुछ। But we are so loving and so kind upon his devotees that you want to give credit of this entire world to me. Similarly, we should know and understand जो भी हमारा expansion हमने किया है संसार में, हमारा घर गृहस्थी, everything is by the grace of the Lord. But Krishna is so merciful, चल तूने किया है, तेरा है, right? But अब हमें याद रखना चाहिए कि भगवान हमें कृपा देते जा रहे हैं, हम लोग उनके रिटर्न में क्या दे रहे हैं उनको? हम 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते उनके लिए नाम जप का। So when we are not dedicating in that way, we will have to bear the sinful reaction for that and we suffer at the end of our life. हमें उसका परिणाम भुगतना पड़ता है फिर, right? So that's all. Then
After that, he says in the verse number 30, yeah, one of the beautiful verse. Yeah, this is the only verse in this chapter that will talk about Krishna and his bhakti. तो भगवान बोलते हैं कि इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है, जो डूअरशिप मेंटालिटी से बाहर निकलने का. वर्स नंबर 30, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यासाध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्स विगत ज्वर. या रीड द ट्रांसलेशन. Therefore, O Arjuna, surrender all your works unto me, with full knowledge of me, without desires for profit, with no claims to proprietorship, and free from lethargy. यस, क्या करो तुम? Surrender. सरेंडर ऑल योर वर्क एंड डिवोशन एंड लाइफ अनटू मी. सरेंडर करना मतलब ये नहीं कि फिर मैं रोड में आ गया सब कुछ मैंने सरेंडर कर दिया. नो नो, दैट टाइप ऑफ सरेंडर. यू स्टिल हैव एवरीथिंग अंडर यू ओनली, बट you now recognize who is the real proprietor, and in that way you try to mold your life in such a way that he will really appear to be a proprietor. मतलब ऐसा नहीं, proprietor कृष्ण है, लेकिन मैं सब कुछ मेरे भोग के लिए इस्तेमाल करता हूँ, भगवान के लिए कुछ नहीं है. सचमुच अगर आपके अंदर ये भाव आया है कि भगवान प्रोप्राइटर है, then you will really start having Krishna conscious lifestyle. You will dedicate your time for chanting. You will offer bhoga to him. Wherever you go, you will try to propagate his message. इस तरह से वो बोलना नहीं पड़ता, नेचुरली हो जाता है. जिससे आप प्रेम करेंगे उसके बारे में लोगों को बताने की चेष्टा करेंगे ही ना. अब आप अगर आपके बिजनेस से प्रेम करते हैं तो बिजनेस के बारे में बताएंगे लोगों से. आपने कुछ चीज लिया, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप उसके बारे में बताएंगे लोगों को. और आप अगर भगवान से प्रेम करना स्टार्ट कर दिया तो आप भगवान के बारे में बताना चालू करेंगे. नॉट दैट यू विल स्टॉप प्रोपेगेटिंग योर बिजनेस, दैट विल गो ऑन, बट उसमें आप कृष्ण का एलिमेंट ऐड कर देंगे. राइट. सो प्रीवियसली यू मे बी गिफ्टिंग सम नॉवेल्स, कुछ बाहर का चीज. अभी आप भगवद गीता गिफ्ट करोगे, आप जप माला गिफ्ट करोगे, आप उनको कीर्तन के लिए इनवाइट करोगे, आप उनको धाम यात्रा के लिए इनवाइट करोगे, है कि नहीं. आवर कॉन्शियसनेस विल स्टार्ट चेंजिंग कंप्लीटली. तो यहाँ पे इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि सरेंडर अनटू मी. या और यहाँ पे दो चीजें दी हैं वर्ष में, निराशिर एंड निर्ममो. निराशिर का ट्रांसलेशन क्या दिया है? यू सी इन द वर्ड मीनिंग. Without desire for profit. Yes. And nirmam means without ownership. मैं और मेरा, इस भावना से निकल जाओ. राइट. सो एक्चुअली हमारे आचार्य इसका ब्रेकअप देते हैं. मयि सर्वाणि कर्माणि मीन्स ट्रांसेंड. सब कुछ मेरे को डेडिकेट करके इस जगत को आप ट्रांसलेट करके मेरे पास पहुंचो. संन्यास अध्यात्म चेतसा मीन्स इन गुडनेस. निराशर निर्ममो मीन्स गोइंग बियॉन्ड पैशन, क्योंकि हम सोच रहे हैं ना मेरा है करके. एंड युद्धस्व विगत ज्वर मीन्स गोइंग बियॉन्ड इग्नोरेंस. सो बेसिकली दिस वर्स टॉक्स अबाउट गोइंग बियॉन्ड पैशन, गुडनेस, इग्नोरेंस, सब कुछ पार करके शुद्ध अध्यात्म चेतना में जाओ. भगवान की, सब कुछ भगवान का है. भगवान, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये भाव आना चाहिए. राइट. मैं किसका हूँ? भगवान का हूँ. और भगवान किसके हैं? मेरे हैं. राइट. एंड प्रभुपाद इन द पर्पट सेज, if you go to the second line, the Lord instructs that one has to become fully Krishna conscious to discharge duties as if in military discipline. Hare Krishna. तो हमारा साधना कैसे होना चाहिए? should be like military discipline. चैंटिंग करना है मतलब करना ही है, इतने बजे करना मतलब करना ही है, भगवद गीता पढ़ना है पढ़ना ही है. मिलिट्री डिसिप्लिन जानते कैसे होता है? वॉट एवर यू डिसाइड होना चाहिए मतलब होना चाहिए. मिलिट्री मिशन पे निकलते तो थोड़े ऐसा बोलते आज मूड नहीं हो रहा है, आई थिंक द एनिमी इज वेरी फार अवे, लेट अस रिलैक्स. वेदर इज फार अवे और वेरी नियर, यू हैव टू बी अलर्ट. राइट. इसलिए प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं, सच इंजेक्शंस मे मेक थिंग्स अ लिटिल डिफिकल्ट, नेवरदलेस ड्यूटीज मस्ट बी कैरिड आउट विद डिपेंडेंस ऑन कृष्ण, बिकॉज that is the constitutional position of the living entity. The living entity cannot be happy independent of the cooperation of the Supreme Lord, because the eternal constitutional position of the living entity is to become subordinate to the supreme desire of the Lord. Arjuna was therefore ordered by Sri Krishna to fight as if the Lord were his military commander. One has to sacrifice everything for the goodwill of the Supreme Lord and at the same time discharge prescribed duties without claiming proprietorship. Right?
Arjun did not have to consider the order of the Lord, he had only to execute his order. इस तरह से, like that. It is describing. So one should not be lazy in practicing Krishna consciousness, right? One should be very enthusiastic, like this. So we will touch upon the next verse and then we'll conclude. Verse number 30, 31. और ये जो भगवान बोल रहे हैं इसके बारे में विश्वास क्यों रखना चाहिए? Why we should follow Krishna's instructions? तो यहाँ पे 31st श्लोक में बोलते हैं ये मे मतमिदं नित्यं अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः. पढ़िए पढ़िए. Those persons who execute their duties according to my injunctions and who follow this teaching faithfully without envy become free from the bondage of brutal actions. Yes, भगवान बोल रहे हैं कि आप मेरे विचार क्यों सुनने चाहिए आपको? Why we should hear and listen and follow Krishna? Because भगवान के जो विचार हैं वो फाइनल इंस्ट्रक्शंस है मनुष्य जाति के लिए. See, आपका मत मेरा मत बदलते रहता है क्योंकि हम लोग क्या है जानते नहीं कि भविष्य में क्या आने वाला है. आपको पता है क्या होने वाला है कल? कितने बिजनेस मॉडल कितने चेंज होते रहते हैं. नहीं, आज ये प्रोडक्ट लिया बेचा, आई थिंक वो चलेगा लगता है आपको, फिर चलता नहीं, छोड़ देते हैं. जो नहीं सोचते नहीं चलेगा वो चल जाता है. वी डोंट नो फ्यूचर है. पास्ट भी हमको मालूम नहीं क्या हुआ, पिछले जन्म में हमने क्या किया हमको मालूम है क्या? वर्तमान तो हमको मालूम है कि बिल्डर ही हम लोग कोशिश करते हैं रोज का थोड़ा सा हैंडल करके थोड़ा करने का. सो हम लोग ना भूत जानते हैं ना भविष्य जानते हैं ना वर्तमान ठीक से. लेकिन भगवान ऐसा है क्या? नो. कृष्णा knows what will happen in the future. He knows the past and he knows your desires, your determination, your longings. He knows. तो उसके हिसाब से भगवान सब कुछ आपको इंस्ट्रक्शन देते, ऐसे करो बेटा तुम्हारा काम बनेगा. मैं क्यों सुनूं आपका? नहीं, सुनो मेरी बात, क्योंकि मैं जानता हूं आगे क्या होने वाला है, मैं जानता हूं पीछे क्या हुआ है. So therefore our opinion may change over a period of time, but Krishna's opinion will never change because there is a finality to his opinion. Mata means opinion, and generally opinion doesn't have so much authority, but Krishna saying my mat eternally nityam, ye me matam idam nityam, यानी कि eternally, this is my eternal instruction of Arjun. Right? इसलिए हमारे मत को कुछ कीमत नहीं है एक कौड़ी की भी. नहीं, मेरे हिसाब से ऐसा होता है, तुम्हारे हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ आज तक. राइट? जो भी हुआ है वो भगवान की कृपा से हुआ, इतना समझ लो. तो कृष्णाज इंस्ट्रक्शंस आर इटर्नल. इसलिए हमें भगवान की सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, क्योंकि उनका जो ओपिनियन है वो इफेक्ट नहीं होता है किसी देश काल टाइम से. भगवान का इंस्ट्रक्शन परमानेंट है हमेशा के लिए. अरे भाई, जिसने दुनिया बनाई उसको मालूम रहेगा ना कि दुनिया में क्या है क्या नहीं है. जिसने आपका ये साउंड सिस्टम बनाया है, समझो एक रेडियो ट्रांजिस्टर बनाया है, उसको मालूम है ना कि इसमें क्या है क्या नहीं है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, क्या करने से क्या होगा. तो दुनिया किसने बनाया है? जेओएसडी में गए वापस हम लोग. लेकिन वही बेसिक्स है. जब उसने बनाया है तो उसको मालूम है कि यहाँ पे आप सुखी कैसे रह सकते हैं. आप अपने आप से उठपटांग हरकत करने की कोशिश करेंगे तो देख लो क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड. और ऐसा नहीं कि अभी हो रहा है या आगे नहीं होगा, ये होता ही रहेगा. आप कितना भी सोचो कि मैं ऐसे इसको मैनिपुलेट करूंगा, ऐसे अरेंज करूंगा तो सुखी होंगे हम, ऐसे होंगे, नहीं होंगे. आप और ज्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे. जितना कोशिश करते हैं और फ्रस्ट्रेट होता है. नहीं हो रहा है. Because given the control. कंट्रोलर भी नहीं है, प्रोवाइडर भी नहीं है. 3 चीज कही थी ना, एंजॉयर है. जो नाइदर कंट्रोलर नाइदर प्रोवाइडर नॉर एंजॉयर. तो फिर मैं कौन हूं? कोई बोलेगा मैं कौन हूं? फिर मैं कंट्रोलर नहीं हूं, प्रोवाइडर हूं नहीं हूं, एंजॉयर. आई एम सिंपली अ सर्वेंट. आई एम सिंपली सर्वेंट, एंड सर्वेंट इज द वन हु एंजॉयज द मोस्ट. देखो आपके घर में रियलिटी. सी वो उसको क्या टेंशन है बताओ, क्या टेंशन है उसको? ज्यादा प्यार मिला है. सिंपली इफ शी सरेंडर्स, ये मेरा मालिक है, मालिक मुझे यहाँ पे रखा है, जैसे मालिक रखेगा खुश रखने का, जो बोलेगा करने का, कोई एंजाइटी नहीं उसको. फुल प्रोटेक्शन, फुल एंजॉयमेंट, फ्री ऑफ एंजाइटी. लेकिन वो अगर माइंड में चालू करेगा स्पेकुलेशन, मैं थोड़ा घूम के आता हूँ ना,
भले मेरे को रोके, मैं घूम के आऊंगा, तो क्या होगा? बाहर एक बड़ा डॉग आएगा, काट देगा उसको। आई मीन टू जस्ट गिव एन एग्जांपल, व्हेन वी आर इंडिपेंडेंट ऑफ द लॉर्ड, देन वी आर रियली नॉट अंडर प्रोटेक्शन ऑफ लॉर्ड। फिर हम अपने हाथ में लेते जिंदगी, फिर अपने हाथ में लेते, भगवान बोलते तेरे हाथ में, तो तू देख ले, अभी मैं क्या कर सकता हूँ? But still, Still Krishna loves you, still he helps you in the form of giving you frustration and misery. When Krishna gives you misery, that is another mercy of the Lord. Because through that misery, he tries to tell you, देख, बोला था ना नहीं जाने का, बोला था नहीं करने का, नहीं सुनेगा, अभी सुनेगा, वापस भगवत गीता दिखा रहा, देख महामंत्र भेज रहा हूँ, देख प्रसाद भेजा डिवोटी के हाथ में, देख इनविटेशन भेजा कीर्तन के लिए, सुनेगा? नहीं सुनेगा और पीटेगा। जितना नहीं सुनेंगे उतना पीटेंगे, जितना पीटेंगे उतना दुख होगा। जब तक भगवान की नहीं सुनेंगे तब तक पीटते रहेंगे, दुख पाते रहेंगे। प्रभुपाद कहते हैं माया का काम क्या है? टू बीट विद द शूज, पीटते रहो। जैसे पुलिस चोर को कैसे मारती है, देखा है ना भाई? देखा है, सिनेमा में देखा है, रियल में देखा है, देखा है? हाँ, जब तक वो सुधरेगा ना पीटते रहती है। सो माया इज लाइक पुलिस, पीटती रहती है और बेरहमी से पीटती है। देखो दुनिया में कितने कष्ट दुख लोग झेलते हैं, वेरी मिजरेबल कंडीशन, बट स्टिल वो सुधरना नहीं चाहते, तो क्या करेंगे? और पीटेगा वो। जिस दिन बोलेगा But how can we tell them that you are going wrong here, you know, as the, like how you said, a devotee is a guide. So how can you tell that person कि listen, you're making a mistake, step first. पीछे हट जाओ and do this. थ्री टाइप ऑफ पीपल्स। फर्स्ट इज वन जो सुन के समझ जाता है, दैट इज फर्स्ट क्लास पर्सन। सुन के समझ जाता है, बोला है ना यहाँ मत जाओ, सही बोल रहा हो, खतरा है, नहीं जाऊंगा। सेकंड क्लास पर्सन इज वन हु वांट्स टू एक्सपीरियंस, ये क्या है, जरा पिट के देख लो थोड़ा सा, सचमुच पिटाई होती है क्या, मैं देख लो जरा, पिटाई होती है क्या? पिट जाता है, हाँ अभी नहीं जाऊंगा। वो है हमारे साथ ऐसा, किसी को आपने दोस्त बनाया, किसी के ऊपर विश्वास रखा, कहीं इन्वेस्टमेंट किया, पिट गए, ना ना माफ कर दो। सेकंड पर्सन, वी विल हियर बट स्टिल वांट टू गो थ्रू एक्सपीरियंस। थर्ड पर्सन इज वन हु विल हियर, हु विल एक्सपीरियंस, पीटेगा भी, नहीं सुधरेगा। ऐसा व्यक्ति पिट पिट के सुधरता है, फिर अल्टीमेटली फाइनली सुधरेगा वो एक दिन, पिट पिट के। उनका कोई इलाज नहीं होता, पिटना ही उनका इलाज है। But isn't it too late by then? क्या करें, उसको नहीं, मतलब उसको वही चाहिए, उसको वही ट्रीटमेंट से ठीक हो सकता है, तो क्या करेंगे आप उसको? ये लेवल्स हैं, कृष्ण वही कह रहे हैं कि जिसका जो लेवल रहेगा उसके हिसाब से अप्रोच करो उसको। बट डिवोटी क्या है ना, डिवोटी थोड़ा एक्स्ट्रा एडवेंचर करता है कभी कभी, फिर भी उसको बोलेगा तू जॉब कर। But why? Because devotee understands the purpose of the Lord. He is so compassionate. He understands कि भगवान की इच्छा भले उसको पीटने की है, लेकिन भगवान चाहते कि बिना नहीं पीटे बेचारा वो भक्ति करे। उसको भगवान के अंदर हार्ट मालूम पड़ता है कि भगवान चाहते। जैसे देखो ना, आपके घर में कोई बच्चा अगर आपका एक परेशान करे, तो अगर समझो पिताजी पीट रहे जोर से पीट रहे, फिर भी माँ क्या बोलती है? छोड़ दो ना, मत पीटो ना, मत पीटो, जाने दो। फिर घर में दूसरा कोई बड़ा भाई रहेगा, वो भी इंटरव्यू करता है, छोड़ दो ना मम्मी, क्योंकि वो जानता है कि मम्मी का पर्पस क्या है। भले मम्मी पीट रही होगी बट मम्मी नहीं चाहती ना पीटना, उसका हार्ट क्या है कि बच्चा सुधरे, बट अभी पीट रही है क्योंकि गुस्सा आया है। बट दूसरा भाई जानता है कि नहीं, मम्मी का हार्ट तो क्या है, उसको अल्टीमेटली मदद करने का, शी वांट्स टू रिफॉर्म हिम। सो वो जाके इंटरव्यू करता है, छोड़ दो ना, जाने दो ना। तो दैट्स ऑल। As a devotee. सो क्या करें, अभी वो कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो पिटने के बाद ही इसलिए शास्त्र में कहा गया है द फर्स्ट क्लास पर्सन इज वन हु विल हियर एंड अंडरस्टैंड। सुनते ही समझ जाता है, खतरे की घंटी बज जाती है उसके दिमाग में, हाँ खतरा है यहाँ पे। कुछ लोग खतरे के खिलाड़ी होते हैं, जाते हैं जंप मारते हैं, पिटते हैं अच्छी तरह से, बुरी तरह से, फिर वो बोलते हैं ना, फिर दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है, फिर वो सोच समझ के जिंदगी में कदम उठाता है, बोलता है नहीं, पिछली बार मैंने यहाँ गया था और बहुत, या पिछली बार ये व्यक्ति ने, या फिर वो जगह, या फिर ये पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस, ना, तो एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो और ज्यादा खतरों के खिलाड़ी होते हैं,
और पिटेंगे हम लोग। पिटने में जो मजा है वो थोड़ी, They get enjoyment. बट वो क्या होता है ना प्रभु, दैट इज एंजॉयमेंट, बट दैट एंजॉयमेंट अल्टीमेटली विल लीड टू सो मच फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट। उनको वो नहीं पता चलता है, अभी एंजॉय कर रहा है, पिट पिट के भी एंजॉय कर रहा है, बट वो एक दिन इतना सूखा हो जाता है, ड्राई हो जाता है, बिकॉज द सेम पेल एंड स्टेल थिंग विच वॉज गिविंग एंजॉयमेंट नाउ 5 साल बाद वो चीज एंजॉयमेंट नहीं देगी। फिर वो बोलेगा तू वही है क्या जो उस समय था, या थी, जो भी था शरीर जो तो वही था। नहीं नहीं, वो नहीं था। अभी कैसे वो नहीं था, वही तो था। बट अभी क्या हो गया, शरीर the nature of material enjoyment is such that it will eventually has to frustrate you। ऐसे अरेंजमेंट किया गया है, संसार को ऐसे अरेंज किया गया है। इसलिए तो पहले लोग वानप्रस्थ क्यों लेते थे, वो समझते थे कि एनीवे अभी एंजॉयमेंट खत्म हो चुका है, अभी क्या करना है उसमें, चलो भक्ति भजन। ऐसा इतना भी नहीं कि ऐसे ये सोच के, बट वो जानते थे ऐसे सिचुएशन को अरेंज किया गया था। 25 साल रेगुलेशन, नेक्स्ट 25 साल एंजॉय करो भरपूर, भरपूर भी नहीं, रेगुलेशन के अंडर। बट जब एंजॉयमेंट कर लिया, हो गया ना, वो अभी भगवान का भक्ति भजन करो, हो गया ना, आपने कर लिया। लेकिन वहां से छूटेगा कब, जब पहले 25 साल ट्रेनिंग लिया है, तभी नेक्स्ट 25 साल भोग करने के बाद छूट सकता है, नहीं तो नहीं छूट सकता। तो आप बोलेंगे हमने ट्रेनिंग तो किधर लिया है, हमारा ट्रेनिंग हम कैसे छूटेंगे उससे। तो इसलिए कलयुग में प्रभुपाद ने ये शॉर्ट फॉर्मूला दिया है, दैट इज महामंत्र, डिवोशनल लाइफ। जो भी आप बनाओ, भगवान को भोग लगा के बनाओ, खाओ, जप करो। इससे आपको धीरे 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 जो चीजें आपको अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेट करने वाली है, उससे पहले आपको विरक्ति आ जाएगी। नहीं तो बहुत मुश्किल है। देख रहे हैं ना एग्जाम्पल, आपका तो लाइव एग्जाम्पल है, यू आर सीइंग द एग्जाम्पल ऑन योर ओन। इफ यू डोंट डिटैच टाइमली, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिटैच एट द टाइम ऑफ डेथ, नॉट पॉसिबल, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। एंड सच पीपल, ऐसे लोगों को आप क्या क्या करेंगे, आप उनको कुछ बोल भी नहीं सकते, यू कैन विड्रॉ ऑल्सो, केयर भी लेना है, बट यू हैव टू सी देम सफरिंग लाइक दैट। सो देन एट दैट टाइम ओनली थिंग इज प्रेयर। अल्टीमेटली प्रेयर इज द ओनली थिंग दैट्स वर्किंग at the beginning, in the middle, at the end. When Krishna is pleased, he will set everything right. If he is not pleased, Hare Krishna, everything can go wrong. तो दुनिया में देखो ना क्या क्या हो रहा है। लोग सोचते हैं कि आई थिंक ये करूंगा तो ये होगा, तो उसके परिणाम क्या होता है, युद्ध निकल जाता है। वॉर इज क्रिएटेड फॉर दैट। और वो एक बड़ा वॉर है, छोटे छोटे वॉर हमारे लाइफ में, घर में चल रहे हैं। हम सोचते हैं ऐसा हुआ, लेकिन निकलता परिणाम क्या, दुख। इसलिए भगवान के भक्ति भजन के अलावा जो भी क्रिया हम करेंगे, वो सारी क्रिया हमको एंटेंगल करने वाली है। आपको अभी ये चीज स्वीकार्य है नहीं है, वो फर्क नहीं पड़ता है, वेदर यू अग्री नॉट अग्री, इवेंचुअली यू विल एक्सपीरियंस एनीथिंग दैट इज नॉट कनेक्टेड टू द डिवोशनल लाइफ हैज टू इवेंचुअली फ्रस्ट्रेट यू एंड पुट यू अंडर सो मच इल्यूजन, बॉन्डेज। तो जो भी करना है करो, नाम जाप करते रहो। नाम जाप करना मतलब क्या है, दिखा रहा है कि आप भगवान से कनेक्ट होना चाहते हो। जो भी कर रहे हैं आप उनके अधीन रह के करना चाहते हो। कलयुग में केवल एक ही विधि है, नाम कीर्तन। देयर इज नो अदर वे। यू कैन renounce योर होम, यू कैन गो टू द जंगल, यू कैन गो टू हिमालय, यू कैन बिकम सन्यासी, यू कैन बिकम renounce ऑल ऑफ अ सडन। जहां हो वहीं पे रहो, भगवान का जाप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही सूत्र है, और कोई सूत्र नहीं है। जितना भी डिस्कशन आप करते हैं, गीता भागवत जो भी पढ़ेंगे, सत्संग सुनेंगे, उससे यही कंक्लूजन है, चैंटिंग। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना बार बार कि चैंटिंग करो, चैंटिंग करो, चैंटिंग करो। है कि मिलिश 45 मिनट्स चलेगा, 45 मिनट्स डीप एब्जॉर्प्शन, total absorption without any interruption or anything. What is happening night 12:30, 1, anytime? Like I'm all alone. Nobody is there. Just Krishna and me. You know, in fact, I just said why I met somebody who's dedicatedly it's a Rudraksh. दुकान चलाता है Huh? क्या, रुद्राक्ष है? He sells Rudraksh. अच्छा, He was a very, he's a devotee of Shiv.
सी समझ में आता है वो मैं उनको मिलने गया था वो हर हर महादेव बोलते हैं और मेरे मुंह से हरे कृष्णा निकला एंड एट दैट टाइम मेरे मुंह से मैं हर हर महादेव बोल रहा यार हर हरे कृष्णा हरे कृष्ण इट वाज सो मच then I because समझ में आता है कि he is saying हरे हर महादेव and like still I'm seeing that only you know like I just shock हो गया I was trying शिव जी क्या है, वो चाहते हैं कि आप भगवान का नाम लें। शिव जी के भी आराध्य भगवान राम ही है ना, कृष्ण ही है ना। तो कह रहे यार मेरा नाम ले रहे हो लेकिन ठीक है मेरे प्रभु का नाम लो। ऑफिस है तो वन ऑफ द बेस्ट ट्रक्स इन इंडिया यू कैन से विड्रॉ लाइफ तने शेखा you get all most a lot of other products also शालीग्राम मिलता है आपके पास अच्छा, हाँ बहुत गंडकी रिवर का शालिग्राम, हाँ गंडकी रिवर का जो नेपाल में उसका शालिग्राम है। आपके पास देने शालिग्राम में नेपाल से he get all authenticated इज ड्रिंकिंग एवरीडे चरणामृत ओनली, शालिग्राम का वो रखा है ना उसके अंदर। daily हाँ, तो उससे ही पानी जो आता है शालिग्राम का अभिषेक होके आता है। he said we get all authenticated in fact बट एक्चुअली वी आर नॉट सपोज टू गेट हरे कृष्ण, not supposed to drink नो नॉट सपोज टू गेट शालिग्राम एंड एवरीथिंग। अभी आपके पास पहले से है इसलिए नहीं इनके मेरे पास आई इसका सो दैट इज एक्सक्यूज्ड। बट एक्चुअली वी आर नॉट, इवन वृंदावन जाते हैं ना गोवर्धन में, supposed to उधर का शिला भी लेके नहीं आ सकते आप। हाँ, वो आपका हो गया, अभी आपको बोनस में पहले मिल गया। बट इफ यू आस्क मी आई विल नॉट रिकमेंड। आपको शालीग्राम देना नहीं चाहिए लेके नहीं आना चाहिए बिकॉज शालिग्राम कृष्ण है, उसका घर में लाओ तो पूजा करना चाहिए। नहीं करो तो फिर आप तो मतलब नहीं है तो प्रभु का तो क्या चरणामृत पी रहे हो, इसलिए उनको जाने दो। यस नीतू माता जी है, क्या चल रहा है आपका? चैंटिंग 2 राउंड्स, ओके। यानी अमित प्रभु 2 राउंड्स, ओके। आप तो क्या बड़े भैया भाभी है ना, तो फिर आपको पूछते रहना चाहिए। हरे कृष्ण। So let us chant. Chanting is the only way. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna,
Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Jai Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Jai Shri Harinam Sankirtan ki Srila Prabhupada ki Hare Krishna. See you next week. Till that time keep chanting Hare Krishna and keep purifying the atmosphere.